Hi guys, welcome to Miranda House, Unnat Bharat Abhiyan educational video series. And today, I Tanushkara from the Department of Economics of Miranda House shall be continuing with you with this lecture of crop production and management. Okay, so let's begin our class with an interesting story. So in our story, there is a farmer who has a very big farm. One day he just saw some unwanted plants growing along with his crops and he just got so much worried about that. So the unwanted plants which he saw growing along with his crops are called weeds. And the process of removing these weeds from the field or the farm is called weeding. ठीक है? So अगर वो farmer परेशान हुआ है, इतना worried हुआ है, तो there must be some reason behind that. So let's get know the reason what exactly the weeds do to our crops. ठीक है? तो उस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर एक piece of cake है, ठीक है, and you are the only person in that room, तो आप क्या करोगे? सिंपली उस पीस ऑफ केक को लोगे, खा लोगे, ठीक है, कोई कुछ नहीं, कोई कंपटीशन है, कहीं किसी से कोई बहस नहीं, आराम से. बट अगर वही सेम रूम में वो पीस ऑफ केक है और आप 4-5 फ्रेंड्स हो वहां पे, तो व्हाट यू विल डू? भाई नहीं भाई, आपने क्या करोगे? फ्रेंड्स से झगड़ा करो, नहीं भाई मुझे भी चाहिए केक, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए. आपको क्या करना पड़ेगा? उनसे कम्पीट करना पड़ेगा वो पीस ऑफ केक लेने के लिए. एंड ऑब्वियसली आप जो पीस ऑफ केक लोगे तो वो आपका कम हो जाएगा. आपको जितना मिलेगा हिस्सा, आपका हिस्सा कम हो जाएगा. यही सेम चीज हमारी किसके साथ हो रही है? क्रॉप के साथ हो रही है. वीड्स यही सेम चीज करने वाली है. तो व्हाट, अगर जब वीड्स हमारी पिक्चर में नहीं थी तो हमारी जो क्रॉप थी सारे न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर मिनरल जो भी उसको सॉइल से चाहिए, फर्टिलाइजर वगैरह, वो इजीली अब्सॉर्ब कर लेती थी. बट जैसे ही हमारी ये वीड्स पिक्चर में आए तो क्या हुआ? इन वीड्स ने सारा उनका जो न्यूट्रिएंट्स है और जो फर्टिलाइजर्स है, वाटर है, ये उनसे लेने लग गए. ठीक है, अब प्लांट को वो सेम चीज जो उनको पहले इतनी आसानी से मिल जा रही थी, उस चीज को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब इनको अगर कंपीट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली अब जो उनको न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स, मिनरल्स मिलेंगे प्लांट को, तो वो कम होंगे एज कम्पेयर टू इनिशियल्स. सो अब क्या होगा हमारे यहाँ कि प्लांट्स को उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जितना उनको पहले मिल रहे थे. एंड इससे क्या होगा? उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा. सो दैट्स मेक द फार्मर वरीड अबाउट द वीड्स. कि वीड्स की वजह से उसकी क्रॉप उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी. दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू रिमूव वीड्स from time to time to the field. Okay, so let us take a look on the methods of weeding, how we can remove the weeds. So basically, we can done it either by manual or by spraying weedicides. In manual method, what we do is we just pluck the weed from the field. Okay, it can be done by hands or it can be done by the tools. And there is a tool on the screen which you can see, khurpi, which is used in India to remove these weeds from the farm. Okay, in weedicides, what we do, we just spray weedicides. Weedicide is basically the chemicals, and we spray them on the plant, on the weeds basically, and just they got destroyed by them. The DDT is a very popular weedicide which is used among the farmers. Okay, so let's move on. So similar to weeds, there are some organisms, okay, or insects or the animals which damages our crop. Okay, and these organisms which damages our crops are all known as pests. To control this pest, what we can do, we can just spray pesticides or insecticides. They just kill the larva or the eggs or the insects which eat the leaves of the crop and get destroyed. They get all killed by the pesticides and insecticides. So, what's the interesting thing about these all pesticides, insecticides, and weedicide is that they all are target specific. If you took the weedicide and spray on the weeds, they just all get destroyed. Okay, the crop will get unaffected by this. अगर हम वीडीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो वो सिर्फ वीड्स पे काम करेगी, हमारे प्लांट को कुछ इफेक्ट नहीं होगा. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, द क्रॉप इज सेफ. ओके, तो अब हमारे फार्मर ने सारी हमारी क्रॉप को वीड से, पेस्ट से, इंसेक्ट से, सबसे बचा लिया. एंड नाउ द क्रॉप गेट मैच्योर्ड, so it's now the time to get harvested. So the process of cutting the matured crop from the field is called harvesting. What do you basically do in harvesting? We just cut
the crop or the plant close to the ground in order to clear the farm for the next round of agriculture. हमें नेक्स्ट भी तो फार्मिंग करनी है, तो उसके लिए उस फील्ड को क्लियर करा जाता है हार्वेस्ट करके, ठीक है. ऑल्सो हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन आइदर मैनुअली और बाय मशीन्स, ठीक है. Manually, it can be done by the tool called sickle. As you can see on the screen, I have shown you some sickles, how that is look. Okay, so let's move on. Now we have harvested the crop. What we want to get? We just want to get the grains. हमें वो wheat का दाना चाहिए जिसको हम खा सकते हैं, जिसका हम आटा बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है. तो हमें वो चाहिए. How to get that? उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे? थ्रेशिंग करेंगे. First of all, we do threshing. Basically, what we do in threshing, we just beat the bundle of the straws or the crop which we have cutted in the harvesting against an object or a rotating drum or anything it can be to get the grains. ठीक है. अब वो जो grain है, वो obviously अकेला नहीं आएगा. It will come along with the chaff and the husk and all the dirts which come along with the harvesting. Okay. वो अकेले नहीं आएगा, वो थोड़ा चफ एंड हस्क के साथ आएगा. तो अब उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली वी यूज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग में हम क्या यूज करते हैं? हम विंड यूज करते हैं. इट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड. जिस डायरेक्शन में विंड चलती है हम उस डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है. एंड फिर हम क्या करते हैं? एक हाइट से उन सारे ग्रेन्स को नीचे की तरफ फेंका जाता है, नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है. तो क्या होता है इससे? बिकॉज द ग्रेन्स आर हेवी, दे गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द ग्राउंड. वो हेवी है तो वो एकदम सीधे ग्राउंड पर आ जाते हैं. एंड बिकॉज द हस्क एंड द चफ एंड ऑल दोस डर्ट इज लाइट इन वेट, दे गॉट along with the wind. वो विंड के साथ आगे बढ़ जाते हैं एंड हमारा सारा ग्रेन जो है साफ नीचे आ जाता है, ठीक है. एंड देन वी जस्ट गॉट द ग्रेन्स. अब भाई हमने थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग करके सब कुछ करके हमने ग्रेन जो है अपना, जो हमारी सीड हमें जो चाहिए ग्रेन्स की, वो हमने हासिल कर ली. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज स्टोरेज. हमें क्या करना है? उन सारी वीट्स जो ग्रेन्स हमने करे हैं उनको स्टोर करके रखना है. अब उनको स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे? उनको इवेपोरेट करेंगे. उनका जो सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट है उसको हटाएंगे. बिकॉज जो मॉइस्चर है वो उनको खराब होने में और ज्यादा मदद करेगा. तो दैट्स व्हाई उनका मॉइस्चर कंटेंट हटाने के लिए हम उनको ड्राई करेंगे, उनका सारा मॉइस्चर इवेपोरेट करवाएंगे. अब क्या होता है? ये जो सारे हमने इवेपोरेट कर लिया, ठीक है. अब जो ये हमारे स्टोर करने के लिए होते हैं, तो जब ये सारे ग्रेन्स हमारे फार्मर्स से लिए जाते हैं तो एक गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये सारी गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करती हैं? फार्मर से सारा का सारा जो ग्रेन्स है ये ले लेती हैं एंड उसके बाद ये मार्केट में सप्लाई होते हैं, तब ये शॉप्स में जाते हैं, ठीक है. तो अब इनके बीच में कहीं स्टोरेज का भी हिस्सा है. अब एकदम से थोड़ा ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके जाएगा सब सामान. तो अब उनको स्टोर करना है, ठीक है. अब इस स्टोरेज के प्रोसेस में कोई इंसेक्ट, कोई पेस्ट, रैट्स, कुछ भी आके इन पे अटैक कर सकते हैं हमारे ग्रेन्स के ऊपर और हमारी सारी फार्मर की मेहनत खराब कर सकते हैं, विच इज नॉट रियली गुड. तो उनको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्या होता है फिर? ये जो सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इनको गोडाउन में स्टोर करती है. तो गोडाउन्स में या तो ये क्या कर सकते हैं? ये जूट बैग्स में कर सकते हैं इनको स्टोर. बट जूट बैग जो है वो उतना अच्छा वे नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज क्योंकि जूट बैग को इजीली कोई भी एनिमल जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो जूट बैग उतना अच्छा नहीं मानते. देयर कैन बी अदर वे टू स्टोर देम. देयर आर वेरी बिग मेटालिक बिन्स व्हिच आर नोन एज सिलोस. हम इनको सिलोस बोलते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे आर मेटालिक इन नेचर एंड दे आर वेरी बिग. तो मतलब हम उसमें आप काफी ज्यादा कंटेनर में काफी ज्यादा ग्रेन स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है. तो इससे और ये इजीली आप बचा के रखेगा इंसेक्ट से एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड जो भी है सारा सामान वेदर से उन सबसे प्रोटेक्ट करके. एंड द सिलोस आर बेसिकली द बेस्ट वे टू स्टोर द ग्रेन्स. ओके, तो अब हमने सारा स्टोर कर लिया एंड सब हो गया. अब क्या?
अब देखिए, अब ये सारा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एनिमल्स से भी बहुत सारे के सारे फूड्स मिलते हैं। सभी को पता है, हमें दूध, हमें बहुत अबंडेंट फूड एनिमल से मिलता है, बहुत ज्यादा फूड, ठीक है। तो अगर अब हम देखें, हमारे जैसे मिल्क की बात करें, तो मिल्क हमें काऊ से मिलता है, गॉड से मिलता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स। एंड ऑल दोज एनिमल्स which give milk to us are known as milch animal. वो जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं ना, उनको मिल्च एनिमल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारा मीट है, मीट भी हमें कितने सारे एनिमल से मिल सकता है, फिश से, हेन से, एंड ऑल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हनी बी, तो हमें हनी बी कहाँ से मिलती है, हनी से मिलती है। अब हमारे फार्मर्स लोग क्या करते हैं, फार्मर्स लोग एक और चीज कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर के साथ हमारे इन सब चीजों को ले सकते हैं, साथ में रेयरिंग कर सकते हैं एनिमल्स की। ओके, तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स क्या होता है, बेसिकली आप एक एनिमल को ले रहे हो, आप उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड उसको शेल्टर, फूड सब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इस प्रोसेस, इस रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो फार्मर क्या कर सकता है, साइड बाय साइड, अपने एग्रीकल्चर के साइड बाय साइड एनिमल हस्बेंड्रीज कर सकता है, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम आल्सो। आई विल टेल यू वन स्टोरी रिगार्डिंग आल्सो दिस। ओके, सो अब देखो, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स को हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, बट अगर आप एक स्पेसिफिक एनिमल को रेयर कर रहे हो ना, तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है। अगर देखो, अगर मैं फिश को रेयर कर रही हूँ, फिश की अगर मैं कहीं पे फिशिंग की रेयरिंग कर रही हूँ, तो उसमें क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम पिसीकल्चर बोलेंगे, उस रेयरिंग को पिसीकल्चर बोला जाएगा। अगर मैं हनी बी की रेयरिंग कर रही हूँ, मैं हनी बी को करना चाहती हूँ, अपने हनी लेना चाहती हूँ, ठीक है, तो अब मैं हनी बी को रेयर करूंगी, तो व्हाट डू वी कॉल दैट, इट इज कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। तो हम उसको एपीकल्चर बोलते हैं। So now let's see that how these apiculture, pisciculture and all this animal husbandry can help the farmer. ठीक है, तो एक हमारे पास क्या होता है, एक चीज बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। उस फार्मिंग में यही होता है, ये क्या होता है, बेसिकली एक साइक्लिक एंड नॉन जीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक का प्रोसेस का जो वेस्ट है, वो दूसरे प्रोसेस के एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हमारे पास एक फार्मर है, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। अ फार्मर नेम रामेश चंद्र डागर, ठीक है, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा ही वाज। एंड सो उसने क्या किया, उसका एक छोटा सा फार्म था एंड उसने इससे बहुत पैसे कमाए उतने छोटे से फार्म से, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक फार्म था ना जो उसका, उसने एग्रीकल्चर तो वो करता ही था उस फार्म में, उसने क्या किया, थोड़े बहुत गार्डनिंग करनी शुरू करी, थोड़े जैसे उसने थोड़े बहुत फूल वगैरह उगाने लगे। अब उस गार्डनिंग में क्या हुआ, जब अगर आपने फूल वगैरह अच्छे से उगाए हैं, तो उसमें क्या आएंगी, हनी बीज आएंगी ऑब्वियसली। तो वहां पर हनी बीज का उसने करा, एपिकल्चर करा उसने, ठीक है। हनी बीज आए और वो जो हनी उसने इकट्ठा करी उनसे, उसने वो जाके बेची ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो जो फ्लावर थे एंड फॉडर वगैरह जो बचा उसका एग्रीकल्चर से भी, उसने उससे क्या किया, उसने डेयरी मैनेजमेंट शुरू किया। उसने एक काव रखी, ठीक है, और डेयरी मैनेजमेंट शुरू किया। तो उसका जो क्रॉप से जो उसका एग्रीकल्चर से फॉडर बचा एंड जो यहाँ गार्डनिंग से जो फॉडर आया, उसने वो सारा फॉडर काऊ को खिलाना शुरू करा। तो उसको कहीं से कुछ लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वही सारा काम। अब देखो, फॉडर जो है वो एग्रीकल्चर का वेस्ट है, और डेयरी मैनेजमेंट पे वो एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर रहा है उसे, ठीक है। अब उसने जब उसको करा, तो ऑब्वियसली काऊ ने उसको दूध दिया, मिल्क, एंड उसने वो मिल्क फिर बेचा, ठीक है। अब जो काऊ है, काऊ बेसिकली काऊ डंग प्रोड्यूस करती है, विच इज वेरी बेनिफिशियल, ओके। तो अब उसने वो काऊ डंग को क्या किया, जो था उसको थोड़ा बहुत लिया, जो उसने एज अ मेन्योर यूज किया, तो उसका जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके भी पैसे बच गए, देखो, ठीक है। तो वहां पर भी सारा यूज कर लिया। उसके अलावा जो काऊ डंग था, वो उसने बायोगैस प्रोड्यूस करने में यूज करा। बायोगैस इज वेरी एसेंशियल, आज के डेट में तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है। उसने वो यूज करा एंड उससे भी पैसे कमाए। तो सोचो, इतना छोटा सा फार्म था एंड उसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग करी। तो वही हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है, अगर फार्मर्स लोग एग्रीकल्चर के साथ अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर वो एनिमल हस्बेंड्री करें, तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। क्योंकि इससे क्या होगा, एक जो प्रोसेस है, उसका जो वेस्ट है वो एज ए न्यूट्रिएंट वो किसी और के में यूज कर लेंगे, तो कहीं भी वेस्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन जीरो, सॉरी, जीरो वेस्ट
इसमें बिल्कुल जीरो वेस्ट है, कोई भी वेस्ट नहीं हुआ, and that's the best thing. So this is the way how a farmer can also get profit from all these agriculture and animal husbandry. So there are some references which you can use for reference. And thank you for watching this video. I hope you all liked it, and thank you for joining us.